کہ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو سابق وزیر اعظم عمران خان کا خطاب ہوا۔ بولے 2018 میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاور لوم انڈسٹری بند پڑی تھی۔ 2018 میں یہاں بے روزگاری تھی۔ ہماری حکومت نے ٹیکسٹائل پاور لوم کو اوپر اٹھایا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو ہوا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاور لوم انڈسٹری بند پڑی تھی۔ 2018 میں یہاں بے روزگاری تھی۔ ہماری حکومت نے ٹیکسٹائل پاور لوم کو اوپر اٹھایا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ میں جب یہاں 2018 میں جلسہ کیا تھا تو مجھے پتا ہے کہ یہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی کہ ہمارے 3.5 سال میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ مجھے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان نے کہا کہ جناب مزدور نہیں ملتے، اور 2018 میں یہاں بے روزگاری تھی۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا، میں نے اس ملک میں روزگار بڑھایا، اور سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے۔ تو مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہر قسم کی سہولت دی، اور انہوں نے پھر پاکستان کو ریکارڈ ایکسپورٹس دی۔ ہماری آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے، اور فیصل آباد یاد رکھیں، ملک کی دولت میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا جب تک اس کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی۔ فیصل آباد پاکستان کے لیے ایک اہم شہر ہے۔ فیصل آباد کی ترقی کا مطلب پاکستان کی ترقی، فیصل آباد کی خوشحالی کا مطلب پاکستان کی خوشحالی۔ پی ٹی آئی کا جلسہ، سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی ان سے ملک نہیں سنبھل رہا۔ ڈالر کا ریٹ روز بڑھ رہا ہے، مرغی کی قیمت میں دگنا اضافہ ہوا۔ حمزہ شہباز خود مرغی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ عوام اب حکمرانوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کیسے ہوئی۔ موجودہ حکومت میں جو شخص جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ سازش کر کے اب اوپر بیٹھے ہیں، اب بتائیں کہ کیا آپ سے ملک سنبھل رہا ہے؟ روپیہ ہر روز گر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ٹماٹر کتنے مہنگے ہوئے، مرغی کتنی مہنگی ہوئی، مرغی کی قیمت دگنی ہو گئی کیونکہ حمزہ شہباز مرغی کی کاروبار میں ہے، دگنی ہو گئی ہے اس کی۔ ذرا جائے لوگوں سے پوچھیں لوگوں سے۔ اور جب آپ ٹی وی کا کیمرہ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تو آپ لوگوں سے دو چیزیں سنیں گے، دو لفظ سنیں گے، ایک ہوگا غدار اور دوسرا ہوگا چور۔ ان کی حکومت میں وزارت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو۔ پرائم منسٹر اور اس کا چیف منسٹر جو بیٹا ہے، 24 ارب روپے تو صرف انہوں نے ایف آئی اے نے ان کی چوری پکڑی ہے۔ نیب میں جو چوری وہ علیحدہ ہے، اوپر سے ایک کوئی منشیات فروش، وہ بھی ضمانت میں، وہ بھی کیبنٹ میں۔ رہنما تحریک انصاف فیض اللہ کموکا کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کے واسیوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتا تھا 20 لوگ اکٹھے نہیں ہونے دوں گا۔ فیصل آباد میں آج انسانوں کا سمندر ہے۔
फैसला बाद 3 लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा, वो दोबारा तुम्हारे पास आएंगे तो क्या कहोगे? जबकि फरख हबीब का कहना था कि ये लोग उजड़ती कातिल है। राना सनाउल्लाह कहता था 20 लोगों को बाहर निकलने नहीं दूंगा। देखो यहां लाखों लोग मौजूद हैं, इमरान खान हर पाकिस्तानी की शान है। जिंदाबाद फैसलाबाद, फैसलाबाद गैरतमंदों की धरती है। फैसलाबाद का मजदूर, फैसलाबाद का किसान, फैसलाबाद का सनतकार, फैसलाबाद के तमाम लोग, हमेशा इन्होंने हक का साथ दिया और पिछले इलेक्शन में यहां से तहरीक इंसाफ को फकीदुल मिसाल कामयाबी मिली, लेकिन यहां से 3 लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा। मेरे दोस्तों, अगले इलेक्शन में वो आपके पास आएंगे तो क्या करोगे इनके साथ? और इनका जो वजीर दाखिला है वो कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर 20 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह, ये देख लो, ये देखो, फैसलाबाद में इंसानों का समंदर है, समंदर है। और वो जो उजड़ती कातिल है, वो किसने 22 कत्ल किए हैं बताओ? और किसने किए हैं? और किसने किए हैं? और जिसने मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद किया, वो कहता था कि 20 लोग भी बाहर नहीं निकल सकते, और 20 लोग भी बाहर नहीं निकल सकते। मैं इसको कहना चाहता हूं, राना सनाउल्लाह, देख लो, यहां 20 नहीं, 20,000 नहीं, लाखों लोग तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर के फासले पर कप्तान के साथ खड़े हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धोबी घाट ग्राउंड में जलसा, बुजुर्ग और माजूर कारकुनान भी पुरजोश दिखाई दिए। जलसे में मौजूद माजूर कारकुन का कहना था कि सख्त गर्मी में अपने लीडर इमरान खान का इंतजार कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धोबी घाट ग्राउंड में जलसा, बुजुर्ग और माजूर कारकुनान भी पुरजोश दिखाई दिए। जलसे में मौजूद माजूर कारकुनान का कहना था सख्त गर्मी में अपने लीडर इमरान खान का इंतजार कर रहा हूं। ख्वाहिश है कि इमरान खान मुझ पर बस नजर डाल ले। इतनी नज़दीक इसलिए आए हैं कि पहले तो नंबर 1 पे कि हमें नज़दीक जगह मिल सके, और अगर खान साहब की हम पे नज़र हमें ज़रूर मिलेंगे। फैसलाबाद डिवीजन भर से कारकुनान और रहनुमा रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंचे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैजुल्ला कमोका के डेरे से रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत कलीमुल्लाह कमोका ने की। रैली कोहे नूर से चलती हुई धोबी घाट पहुंची। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नारेबाजी की। N110 से उम्मीदवार साबका सदर चैम्बर साबिक चेयरमैन PHMA सैयद जियाउल अलमदारी बड़ी रैली के हमरा धोबी घाट पहुंचे। रैली में साबका सीनियर नायब सदर चैम्बर मियां तनवीर शाहिद, मुमताज बाजवा, इंजीनियर आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। ताजरों, मजदूरों और सनतकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सैयद जिया अलमदारी का कहना था कि शहरियों की पहली और बड़ी रैली लेकर जा रहा हूँ। तारीखी जलसा होगा जिसमें NA110 का बड़ा और अहम हिस्सा होगा। ये रैली जो है ये हमारी रैली ही इंशाल्लाह ये जो घंटा का ये जो हमारा धोबी घाट है उसको फुल कर देगी। साबका गवर्नर सैयद जहूर आगा और उम्मीदवार PP 115 हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला खान डुमर की क़ियादत में रैली जलसागाह पहुंची। सैयद जहूर का कहना था इमरान खान के साथ अवाम का हुजूम गफीर है, जबकि अब्दुल्ला डुमर का कहना था कि इमरान खान ही पाकिस्तान के हकीकी लीडर हैं। सुंदर शरीफ की जानिब से PTI जलसा में शिरकत के लिए रैली निकाली गई। रैली सुंदर हाउस केनाल रोड से निकाली गई। सजाद नशीन आस्तानिया आला सुंदर शरीफ सैयद मोहम्मद हबीब अरफानी ने रैली की क़ियादत की। रैली से वाबस्तगान सुंदर शरीफ की कसीर तादाद शरीक हुई। सैयद मोहम्मद हबीब अरफानी का कहना था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। PTI में शमूलियत करने वाले मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी इम्तियाज अहमद लूना की जानिब से भी रैली निकाली गई। रैली ककुआना से धोबी घाट पहुंची। इम्तियाज अहमद लूना का कहना था इमरान खान के कौमी मुफाद के जज्बात से मुतासिर होकर उनके साथ दे रहा हूँ। तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर फख्र महसूस करता हूँ। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से फैसलाबाद की आवाम इस बात को साबित कर देगी कि तब्दीली का सफ़र जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। और जज्बा और जनून का आलम ये है कि आज यहाँ पे जमे गफीर PP 107 का इकट्ठा हुआ है
और इमरान खान साहब अपने लीडर को फैसलाबाद में खुशामदीद करने के लिए डिवीजन के दीगर शहरों से भी कारकुनान और रहनुमा काफिलों की सूरत में पंडाल में पहुंचे। चिन्योर से जिले सदर PTI सैयद जुल्फकार अली शाह और जनरल सेक्रेटरी काजम आतिफ की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में PTI के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले सदर PTI सैयद जुल्फकार अली शाह का कहना था, नून लीगी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, अवाम का समुंदर इम्पोर्टेड हुकूमत को बहा ले जाएगा। आज उनकी बेबसी नजर आई है, बातें करते रहे हैं, अगर रहना होता तो आज बढ़ाते। अब लगता है कि चंद दिन के मेहमान हैं, इसलिए उनसे जुर्रत नहीं हुई कि वो 1 रुपया भी कीमत बढ़ा सकते हैं। चिन्योर से ही जिले सदर PTI विमेन विंग मैडम अक्सा हयात लाली की क़यादत में खवातीन की रैली। खवातीन कारकुनान जलसे में शिरकत के लिए पुरजोश दिखाई दी। अक्सा हयात लाली का कहना था, अवाम का समुंदर इम्पोर्टेड हुकूमत को बहा ले जाएगा। फैसलाबाद का जलसा नई तारीख रकम करेगा। हमारी खवातीन माशाल्लाह भरपूर शिरकत कर रही हैं इस जलसे में, और हम सब ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो जाए, चाहे गिरफ्तारियां हैं, चाहे कोई ये हुकूमत लाना चाह रही है, लेकिन हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं। जंग से भी PTI और टाइगर फोर्सेस के नौजवान काफिला फैसलाबाद पहुंचे। काफिले की क़यादत बैरिस्टर अहमद हसन खान ने की। नायब सदर ज़ेगम अब्बास बलोच, सदर टाइगर फोर्स शान नजीर और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उस्मान कालूना शरीक थे। शुरका PTI के जलसे को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। तादलेवाला से भी रैलियां फैसलाबाद जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुई। PTI रहनुमा मलक जुल्फकार वटू राय, तनवीर चौधरी नदीम, सादुल्ला बलोच, शमशेर वटू, महर जुल्फकार संपाल की जानिब से रैली निकाली गई। शहरियों की जानिब से रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जुल्फकार वटू का कहना था, PTI आज फैसलाबाद में अवाम के समुंदर की तारीखी रकम कायम करेगी। इमरान खान पाकिस्तान को बचाने निकले हैं, हम लीडर के साथ हैं। इमरान खान की कॉल पे, मेरे कप्तान की कॉल पे आपने देख लिया है कि जिस तरह तांदरियावाला की आवाम इस जाली हुकूमत, चोरों, नौसरबाजों के खिलाफ निकली है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब ये भागेंगे। कमालिया में PTI कारकुनान खान का मासूमिया से जलसा में शिरकत के लिए रवाना हुए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सकलीन हैदर काजमी, सरदार ज़ियाउल्लाह डोगर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वसीम अब्बास कादरी, एडवोकेट समेत दीगर शरीक थे। बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में सूरज सवानेज़े पर आ गया। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। फैसलाबाद डिवीजन में सूरज सवानेज़े पर आ गया। शदीद गर्मियों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशनगोई कर दी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को ठंडे मशरूबात, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। चिन्योर शहर और गिरदोनवा में सूरज आग बरसाने लगा। शहर और गिरदोनवा के इलाके में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर और गिरदोनवा के इलाके में गर्मी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ने लगी है। हवा में नमी का तनासुब 22%, जबकि हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर और गिरदोनवा के इलाके में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जंग और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री, कम से कम 30 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 22% रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार जनूब मशरिक से 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने जल्दी पर तेल का काम करते हुए आइंदा 24 घंटों में बारिश न होने की खबर सुना दी। शोबा टैक्सिंग और मुजाफात में भी सूरज का पारा हाई हो गया। पारा 46 तक जा पहुंचा। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक टोबा और गिरदोनवा में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में हीट स्ट्रोक वेव के पेश नजर लारी अड्डे पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ, CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल का लारी अड्डे का दौरा, हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद में हीट स्ट्रोक वेव के पेश नजर लारी अड्डा पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ, CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल ने लारी अड्डा का दौरा किया। हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। फैसलाबाद में 44 मकामात पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कायम है। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल का कहना है कि रेलवे स्टेशन, घंटाघर, जनरल बस स्टैंड पर काउंटर 4 THQ 17 RHC में हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे फैसलाबाद में कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ। हमारे तमाम कैंप, हॉस्पिटल्स और RHC से जो रिपोर्ट आई थी, इसी तरह हमारा अमला जो है ये अगले पूरा हफ्ता जब तक ये गर्मी की लहर मौजूद है हम ड्यूटी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी मेहनत से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि जिला इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरक है। फैसलाबाद, जड़ांवाला, समुंदरी, तांदलेवाला, चकजुमरा में काउंटर कायम है। शहर के कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे रश ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जिस तरह की लारी अड्डा है, वहाँ पे हमने ये मोबाइल सेंटर्स जो हैं हीट स्ट्रोक वाले इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जहाँ पे रेस्क्यू का अमला, हेल्थ का अमला और वासा का अमला मौजूद है, ताकि लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाए। शहर के 44 से ज़्यादा मकामात पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिए गए। कैंप पर तमाम अद्वियात और तिब्बी आलात फराहम किए गए हैं। कैमरा अकील नकाश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। अब बात करें साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की फैसलाबाद आमद के हवाले से। सरीना होटल में मीडिया से गुफ्तगू की, मुखालिफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा 31 मई से पहले निगरान सेटअप कायम किया जाए। ये रिपोर्ट देखें। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने दौरा फैसलाबाद के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मुल्की हालात अबतर होते जा रहे हैं। 31 मई से पहले निगरान सेटअप कायम किया जाए। मौजूदा हुकूमत ठुस हो गई है। मजीद कहा $6 बिलियन रिजर्व में कमी हो गई है। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया है, अब वापस भी बुला लें। IMF के पास आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कौम को बताएं। आप तो लंदन 4 दिन लगा आए हैं, वजीर दफ्तर ही नहीं जा रहे। आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, नहीं, आप खुद ब खुद ठुस होने जा रहे हैं। अगर हम घरों को भी बैठ जाएं तो आप जा रहे हैं, आपसे कोई चीज समझ नहीं रही। बुलाएं अब नवाज शरीफ साहब को, पासपोर्ट उनको मिल गया है जी। हुकूमत पर तनकीद करते हुए शेख रशीद का मजीद कहना था, यहाँ एक एक वजारत के 2 वजीर हैं। बकौल शेर अली का राना सनाउल्लाह ने 20 आदमी मरवाए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत आर्मी चीफ को भिजवा दिए। राना सनाउल्लाह साहब को कहना चाहता हूं, 7 मई को शेर अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसने 22 आदमियों को कत्ल किया है, ये उजरती कातिल है। और ये मैं फैसलाबाद के मीडिया के सामने कह रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी मैंने कमर जावेद बाजवा साहब को भी भेजी है, DG ISI को भी भेजी है, DG MI को भेजी है और मारगला थाना में भी रिपोर्ट की है। 15 उसके खिलाफ विटनेसेस हैं ANF के पास और उसने पिछली तारीख पे फर्द जुर्म नहीं लगने दी। साबिक वफाकी वजीर का कहना था, वजीर आजम शहबाज शरीफ को कल ही फैसला करना है कि IMF के पास जाना है या नहीं। 31 मई तक डॉलर 200 तक चला जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। यहाँ आपको अपडेट करें कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल पंपों पर डीजल की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। हुकूमत का फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला शहरी डीजल के हसूल के लिए खबार होने लगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल पंपों पर डीजल की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। हुकूमत का फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला, जबकि शहरी डीजल के लिए ख्वार होने लगे। शहरियों को कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले ही डीजल का बहरान पैदा हो गया है। ये इनका टैंकर कल आया है अभी 40,000 लीटर का, तो ये हमें दर बदर दलील कर रहे हैं। खाम हमें डीजल नहीं दे रहे कि इनका डीजल ना देने की वजह क्या है कि रेट बढ़ेगा तो हम अपनी मन मर्जी से किसी को देंगे। हुकूमत ने 15 रोज तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक ओगरा की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है, जो शहरियों पर बम गिराने के मुतरादिफ है। कैमरामैन जुनैद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवाम के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवाम के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे और चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई है। हमजा शहबाज आटा, घी और चीनी सस्ता करके आम आदमी को हकीकी रिलीफ देंगे। पंजाब भर में 1000 से जायद फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने की तजवीज़ दी गई है। आगे बढ़े और बात करें कि बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को बिजली चोरों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया। मई के महीने में 80 बिजली चोरों को रंगे हाथों धर लिया गया। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डायरेक्टर तारे लगाकर मीटर टेम्परिंग और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ फेस्को ने कार्रवाई की। मई के महीने में असली बिजली चोर पकड़े गए। फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली चोरों के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरी करने वालों को केफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, कामरान भट्टी समेत दीगर डिविजनल और जिलाई अहदेदार ने शिरकत की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की मेज़बानी कर्नल रिटायर रियाज खान बलोच ने की। कॉर्नर मीटिंग में डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, कामरान भट्टी, राना वारिस हुसैन, हाफिज मोहम्मद अमजद ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की जिलाई सतह पर तंजीम साजी वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आप सदर भी हैं, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मैं ये नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, यानी मैं ओहदे की लिहाज से बात करता हूँ कि जिसके पास ओहदे हैं ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तरफ से इज्जत है ये, वरना थोड़े फिरते हैं मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे। मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग में मौलाना आसिफ मुआविया, आसिफ कंबो, जिलाई नायब सदर शरीफ अंसारी, जिलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद, जाहिद परवेज लाला, डॉक्टर नईम सिंधु और नायब सदर अकलियती विंग वसीम भट्टी ने शिरकत की। जिलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद और कर्नल रिटायर रियाज खान बलोच की जानिब से डिवीजनल क़यादत को हुकूमती ऐवानों में अहम तब्दीलियों पर मुबारकबाद दी गई। 103 बंदों की हमारी जो ये जिनके नोटिफिकेशन हुए हैं, आप देख लें कि उन 103 बंदों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग यहाँ होंगे। मुस्लिम लीग नून ने 1947 में पाकिस्तान बनाया था और अभी वक्त आ गया कि पाकिस्तान को हमने बचाना है। इस स्टेज पे ये इमरानी फितना लेके हमें जा रहा है, पूरे मुल्क को धकेल रहा है, हमें तो अपने पूरे जज्बे के साथ उसका मुकाबला करना है। कॉर्नर मीटिंग के शुरका की जानिब से जिलाई तंजीम साजी के जरिए मुस्लिम लीग नून का पैगाम घर घर पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। चिन्योट की बड़ी शाहराहों समेत अंदरून शहर की गलियां, बाजार और शाहराहें खस्ता हाली का शिकार। कचहरी रोड, चिन्योट रोड, सैटेलाइट टाउन समेत दीगर शाहराहों पर गड्ढे ही गड्ढे, टूटी फूटी शाहराहों पर राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखें। चिन्योट की टूटी फूटी सड़कें जहां शहरियों के लिए वबाल जान बनने लगी, वहीं मौजूदा हुकूमत शाहराहों की खस्ता हाली को खत्म करने में गैर संजीदा दिखाई देने लगी। अंदरून शहर में कॉलेज रोड, चिन्योटी रोड, उमर रोड, सलारा रोड, सैटेलाइट टाउन रोड, पेरिस रोड टूट फूट का शिकार हो गए। टूटी फूटी शाहराहों पर राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्योट के शहरी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं मुतादिद बार तरक्याती कामों के लिए ऐलानात हुए, मगर अमली इकदाम ताहाल न हो सके। हमारे टायर भी खराब हो जाते हैं, उसके अलावा सवारी को भी प्रॉब्लम बनती है, हमको भी बहुत जलालत है। जिस रोड पे भी जाता है वही रोड खराब है, जिधर भी रिक्शा लेके जाता है वही रोड खराब होता है। शहरियों ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर शाहराहों की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। चिन्योट के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि शहर की बड़ी शराहों समेत छोटी शराहों की खस्ता हाली को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि गुजरने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। आगे बढ़े और बात करें झंग के मसरूफ चौराहों पर लगाए गए तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स अर्धा दराज से खराब। अयूब चौक, नवाज चौक, पुराना थाना सदर चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। ये रिपोर्ट देखें। झंग के मसरूफ चौराहों पर लगाए गए तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खराब हैं। अयूब चौक, नवाज चौक और पुराना थाना सदर चौक पर खराब सिग्नल्स के बायस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जी से लाखों रुपए का मंसूबा जंग आलूद होने लगा। शहरियों का कहना था ट्रैफिक सिग्नल्स की दुरुस्तगी के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इस पर कसीर रकम गवर्नमेंट ने खर्च की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। ये आए दिन ख़राब ही रहते हैं। साल के 365 दिन ये 2-4 दिन चलते हैं, फिर ये बंद हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली का मुतालिबा किया गया है ताकि इनकी मुश्किलात दूर हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और जिलाई अफसरान अवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। फैसलाबाद रोड से मुल्हिका आबादियों के मकीन साफ पानी से महरूम हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने से इलाका मकीन साफ पानी के लिए शहर का रुख करने पर मजबूर हो गए। ये रिपोर्ट देखें। चिन्योट में फैसलाबाद रोड से मुल्हिका इलाके अरसा दराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। चिन्योट सिटी, मक्की टाउन, शमसुल हसन टाउन समेत दीगर इलाकों में एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं। इलाके भर में साफ पानी न होने से हेपेटाइटिस और दीगर मोजी अमराज बढ़ने लगे। इलाका मकीन साफ पानी के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हो गए। जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे चिन्योट रजुआ रोड से मुल्हिका आबादियों के मकीनों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत परेशानी होती है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत जलील होना पड़ता है। वो
उधर दूर है प्लांट, उधर जाना पड़ता है, इधर नहीं है, इधर नीचे का पानी बहुत ख़राब पानी है। अहले इलाका कहते हैं मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने वादे किए लेकिन ना फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे, ना बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकी। इलाका मुकीनों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया चिन्योट से मुतालबा किया कि इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बल्दियाती नुमाइंदों का दौरे इख्तिदार ऊंच नीच का शिकार रहा। 2015 में इलेक्शन हुए, 2017 में इख्तियारात मिले, 2018 में फंड्स इस्तेमाल पर पाबंदी लगी, जबकि 2019 में नया एक्ट आ गया। मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों के हिस्से में अधूरा, बेढंगा और लाचारगी वाला दौरे इख्तिदार आया। तरक्याती काम तो ना करवाए गए मगर हल्कों में भरपूर नुमाइंदगी जारी रखी जाए। पंजाब की तारीख के बदकिस्मती नुमाइंदे अपने ओहद के मुतालिक क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट देखें। 2015 में बल्दियाती अदारों के इंतखाबात हो तो गए मगर उन्हें इख्तियारात 2017 में नसीब हुए। 2018 में फिर फंड्स लगाने पर पाबंदी आयद हो गई। मई 2019 में नया एक्ट आ तो गया मगर फिर अदालती जदोजहद का आगाज हो गया। पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान को गैर कानूनी गैर आईनी कदम के जरिए हटा दिया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ पंजाब की आवाम का हुआ। बिलखसूस अगर मैं बात करूँ तरक्याती कामों के हवाले से, तो तरक्याती कामों में एक तातुल आया और उस रुकावट की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर पंजाब के अवाम मुतासर हुए। बल्दियाती नुमाइंदों ने पीटीआई हुकूमती इक़दामात का मुकाबला करते हुए मार्च 2021 में बहाली का फैसला तो ले लिया मगर इस पर अमल दरामद अक्टूबर में हुआ और दिसंबर में फिर टेनोर खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिए गए। इस वक्त की हुकूमत ने फिर नया एक्ट मुतारफ करवा दिया मगर अदम इत्तेमाद की कामयाबी ने इंतखाबात करवाने की मोहलत ना दी। हमारा जो बल्दियाती निज़ाम था, यकीन करें इनके निज़ाम से कहीं हद तक अच्छा था। अवाम भी खुश थी, तरक्याती काम भी हो रहे थे, गलियाँ भी बने थी, बाजार भी बने थे, हमारे ताजर भी खुश थे, हमारे जो रैशी है वो भी खुश थे। मेरा नहीं ख्याल कोई गरीब बंदा भी ना खुश हो, क्योंकि उसके बल्दियाती निज़ाम के साथ साथ हमारे जो नुमाइंदे थे ना वो अवाम में रहते हैं और रहते थे और रहते हैं भी। मई 2022 में मुस्लिम लीग नून की नौमुंतखब हुकूमत से नुमाइंदगान ने बहाली की उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अगर बल्दियाती अदारों को दोबारा से बहाल कर दिया गया तो यकीनन पंजाब की तारीख का सबसे लंबा टेनोर एंजॉय करने वाले बल्दियाती नुमाइंदगान मुनफरिद मकाम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।